Hi everyone, and good evening to all of you. Am I audible to everyone? So first of all, thank you so much everyone for joining here, and people are joining slowly. I'm just admitting. Just a minute. Cool. So people are joining. Welcome Neha. Thank you, sir. Welcome Gauri. Thank you so much for joining us, and I'm sure it will be a great session. And apart from that, I'm very sure it will be one of the best session for everyone. So thank you so much everyone, and this session is very exclusive session because in Live's honor we always try to deliver something best, deliver something different, and I would request to all of you, आपका जो Zoom है उसको गैलरी व्यू में कर लीजिए, स्पीकर व्यू से हटा के, so that हम लोग सभी लोगों को एक साथ देख सके. आप लोग इसे गैलरी व्यू में कर लीजिए प्लीज. I would request to all of you, please do it in a gallery way. Gallery view. So first of all, this is always good when we talk about spirituality, when we talk about meditation, when we talk about something else, but is very important for our mind, body, and soul. But yeah, most of time we are lacking because of that activities. We are trying to do something different, but due to so many reasons in our daily routine, we are not able to do that. So today, Gauri is one of the certified trainer and coach with us for this. So Gauri, I would request you, could you take over this session and could you go ahead with it so that people can do. And apart from that, मैं 2-3 instructions आप लोगों को देना चाहता हूँ. Number 1, आप सभी लोग जैसा ये करा रही हैं स्टेप टू स्टेप उसे फॉलो कीजिए. Number 2, अगर कुछ भी आपको डाउट आता है किसी स्टेप्स के ऊपर लेके, किसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर लेके, आप मैसेज डाल के पूछ सकते हैं. Gauri, please watch your messages also so that you can reply. You can perform according to the user as well. And I hope we all are audible for all of you. अगर किसी को audible नहीं है, please tell us right now. Cool. So Gauri, please start. Okay. Hello everyone. Thank you for the joining. Let's start प्राणायाम सेशन. आज हम वैसे जो प्राणायाम सेशंस हैं हम स्टार्ट करेंगे थ्रू आप ओम से स्टार्ट करेंगे. आज वैसे प्राणायाम 10 प्राणायाम होते हैं और ज़्यादा सूक्ष्म प्राणायाम भी होते हैं, और लेकिन आज हम जो प्राणायाम करेंगे वो 6 to 7 प्राणायाम करेंगे जो मेन प्राणायाम होते हैं, और उसको किस तरह से करना है, कितनी टाइम तक करना होता है और किस वे में करना है, आज हम उतना उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी. और प्राणायाम के साथ आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसके साथ बताती रहूँगी. तो प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने प्राणास को एक्टिवेट करना है. प्राणास मीन्स एनर्जी सेंटर्स. हमारी बॉडी में मतलब 7 चक्रास होते हैं और 5 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो एक हार्ट चक्र पे एंड एक नेवल, बिलो द नेवल, एंड थर्ड इज बैक ऑफ द हेड, एंड फोर्थ इज कपालभाति, एंड फिफ्थ इज आपका अनुलोम विलोम. तो सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा आपको मेडिटेशन करने में इजी रहेगा और आप इजीली बैठ पाएंगे. और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है बीच में प्राणायाम के थ्रू कि आपको कुछ भी क्वेरी, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा. And I would request you, if possible, because this is the meditation and pranayama and some kind of a body related techniques and therapy. So अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे so will be great, because ये वो सेशन नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ काउंसलिंग सुन रहे हैं. There
you will have to perform with us so that things will be easy for you later on as well. So आप लोग अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा सारे लोग. Please, this is my humble request to all of you. Because this session it will be successful after once you will on your video. Yeah, Gauri, what you are saying? मैं देख भी सकूं कि आप लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो फिर मैं उस चीज के लिए देख सकती हूँ. Let's start. Yeah, please go ahead. Start from Om. Yes. Deeply inhale and exhale, and 3 times Om करना है आपको. Just relax your mind, relax your body, and focus on your breath. Let's start. Deeply inhale. Exhale. 3 times repeat. Deeply inhale. Positivity in. Deeply exhale. Nervousness out. Again, last time. Deeply inhale. Positivity in. Exhale. Nervousness out. And observe yourself. Just observe. And start 3 times Om. Deeply inhale and exhale करते हुए Om. Deeply inhale. Start Om. Long and loud. जितना आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं ओम के थ्रू आप कीजिए. Deeply inhale. Exhale through mouth and last one. Deeply inhale. Chant Om. Just relax and focus on your breath. Observe nature sound. कौन सी आवाजें जो सुनाई दे रही हैं आपको, just observe and relax. Don't react on your thoughts. Just observe. Mind relax. Mind relax. Mind relax. Keep breathing. We are creating strong positive vibes around us. Just feel relaxed. Now activate your 5 pranas. Both palms on your chest. And deeply inhale, hold and exhale. Hold आप 3 seconds भी कर सकते हैं, 5 seconds भी कर सकते हैं, according to your strength. Deeply inhale. Focus on your chest. Activate your heart chakra, Mahaprana. Activate your Mahaprana. Hold. Observe and exhale. 4 more. Deeply inhale. Focus on your heart chakra. Activate your Mahaprana. Observe. Exhale. 3 more. Deeply inhale. Hold. Observe. Exhale. 2 more. Deeply inhale. Observe. Exhale.
Mahaprana. Just observe your body, your mind, and exhale. Now, both palms below the navel, and focus on your below the navel. And deeply inhale, exhale 5 times. Continue. Inhale. Activate your Apana Prana and exhale. One more. Inhale. Activate your Apana Prana. Exhale. Again, 3 times more. I'm activating my Apana Prana. Exhale. 2 more. Exhale. 1 more. Now both palms back of the head. Activate your Udana Prana. Deeply inhale and exhale through mouth. Deeply inhale. Observe and exhale through mouth. One more. Three more. Two more. One more. Last. Relax. Come back in Dhyan Mudra again. Just observe. Now start with first pranayam. Can you hear me? Or hello? Yeah, we can hear you, Neha. Okay. Now start with first pranayam, Vastika pranayam. तो Vastika pranayam में आपको क्या करना है? Deeply inhale, exhale. आप इसको नॉर्मल स्पीड से, थोड़ा मीडियम स्पीड से एंड हाई स्पीड से, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. आप फर्स्ट अगर अभी नए नए आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड से कीजिएगा. अगर आप करते रहते हैं तो इसको आप मीडियम स्पीड से कीजिएगा. और आप अगर बहुत टाइम से कर रहे हैं तो इसको हाई स्पीड से आप कर सकते हैं. तो बट इतना ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए. इस तरह से मूव नहीं करनी चाहिए. बस ब्रीथ पे फोकस करना है. चेस्ट ओपन, एक्सहेल करते हुए बिल्कुल रिलैक्स. ये नहीं करना, बॉडी को मूव नहीं करना. तो डीपली इनहेल, एक्सहेल. तो फास्ट कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्लो. स्टार्टिंग में आप इसको 10 टाइम्स कर सकते हैं, देन 15, देन 20. इसके अकॉर्डिंग आपको करना है. तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको वॉमिट फील हो रहा है, तो आप इसको रोक दीजिएगा उसी टाइम ही एंड नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा उस टाइम. तो जितना हैवी आप ब्रीथ करते हैं, आपके जो नॉस्ट्रल्स है वो क्लीन हो जाती है, जिससे आप और प्राणायाम करने में आपको इजी रहता है. आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो फर्स्ट प्राणायाम इज And your strength is also, I would add one more thing here. By this activity that God is doing here, we are capable to develop our strength as well, because our strength is also really very important, especially for our breathing system. So most of the time, in later on when you will cross 30 or 40 age, 45 age, so definitely you will face a kind of little bit challenges in your breath. So these kind of exercises definitely will be helpful for that age as well. Yes. Now focus on your breath again. And just observe your body, your mind. Just don't react on your thoughts. Feel the breath movement. And just calm. We are creating strong positive vibes. And just feel it. Vastrika pranayam आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10 सेकंड्स को लास्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे 1 मिनट 2 3 मिनट इस तरह से. तो 5 मिनट्स इज इनफ. एंड
एंड सेकंड प्राणायाम इज कपालभाति। तो कपालभाति सेकंड प्राणायाम। तो कपालभाति में जब आप करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, गले में से सांस छोड़ते हैं। गले से सांस नहीं छोड़ना, जस्ट डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। प्रॉपर जो भी आपके अंदर प्रॉपर ब्रीथेस करनी होती है, तो आप थ्रोट से नहीं, तो नोज कीजिएगा इस तरह से। स्लोली आप इसको ट्राई कीजिएगा। जो जल्दी जल्दी इसको करते हैं वो गले में लिए होते हैं, उनको पता ही नहीं हो रहा था कि उनका कपालभाति ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट चेक कीजिएगा कि आपकी ब्रीथ थ्रू नोज आनी चाहिए, आपके गले में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। तो डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, स्टार्ट कपालभाति ब्रीदिंग। फेस नॉर्मल रहेगा, फेस पे कोई भी आपका तनाव, कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड स्टमक। तो आप देखिए, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए, और आप इस तरह से पेट को जैसे एक्सहेल कर ब्रीथ को जैसे एक्सहेल कर देते हैं, पेट अंदर गया तो लूज छोड़ दीजिए, उसके बाद वापस से एक्सहेल, देन फिर लूज छोड़ दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, पेट को ब्रीथ को करते हैं एक्सहेल, उसके बाद उसको होल्ड करके रख देते हैं अंदर, तो वो चीज नहीं करनी। जस्ट एक्सहेल एंड लूज, देन फिर एक्सहेल, देन लूज। आप इसको 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिएगा, मिनिमम जरूर करना है। उसके बाद इसको 1 मिनट तक करिए, फिर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। तो स्टार्ट, एक्सहेल, स्टार्ट कपालभाति ब्रीदिंग। स्टार्टिंग में जो लोग करते हैं वो ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उनको स्टॉप नहीं करना है इस चीज को। अगर जैसे ब्रीथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सहेल, तो उसके बाद इनहेल एक्सहेल कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ बार बार करिए ताकि आपको कपालभाति ड्यूरेशन बढ़ाने में आपको हेल्प मिले। तो जब आप कपालभाति ब्रीदिंग करते हैं तो ध्यान कीजिए, आप या तो स्टॉप वॉच लगा सकते हैं कि आपने कितने सेकंड किया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी आपकी धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा थकावट सी होगी, आपके बैक में आएगा, लोअर बैक में, अपर बैक में भी आ सकता है, बट ध्यान रखिए कि आपके बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रख के, आपके चेस्ट ओपन रख के, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रख के आपको ये कपालभाति करना है। अगर आप इस तरह से बैक बेंड करेंगे, आपके 7 चक्रास आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, सिर्फ स्टमक पे आएगा और आपके लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा, आप ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, और जैसे ही आपको थकावट हो आप नॉर्मल आ जाइए और नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा। And apart from that, if your body is doing shriveling kind of during this activity, so that means your body temperature is also changing, so that's okay, you don't need to worry about it, I'm feeling weak and all. Yes, तो then आप नॉर्मल ब्रीथ करने लग जाइएगा, तो नॉर्मल ब्रीथ से आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। देन फिर आप वापस से उस चीज को स्टार्ट कीजिएगा। तो आप स्टार्टिंग में इसको 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं। जो नॉर्मल, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो प्रॉब्लमैटिक बॉडी है, उसको कम से कम 15 मिनट्स तो करना ही है। और जो बहुत ज़्यादा जिनको जैसे शुगर है, बड़ी बड़ी जैसे प्रॉब्लम है, तो उनको कम से कम हाफ एन आवर मॉर्निंग करना ही है, और एम्प्टी स्टमक करना है। अगर आप इवनिंग में, जैसे मॉर्निंग में नहीं कर पाते और आप चाहते हैं मैं इवनिंग में करूं, तो एटलीस्ट आपको 4 आवर्स का आपका गैप होना चाहिए आपके लंच में। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि इसको एम्प्टी स्टमक ही करना है। और आप इससे पहले पानी नहीं पीजिएगा, अगर आप पानी पीते हैं तो आपको वॉमिट भी हो सकती है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाफ एन आवर पहले या फिर 45 मिनट्स पहले आप पानी पी लीजिएगा, और आपका ब्लैडर खाली होना चाहिए इस टाइम पे। लेट्स स्टार्ट अगेन, डीप इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट कपालभाति ब्रीथिंग अगेन, 1 मिनट मोर। जैसे आप देख रहे होंगे मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, ये
ये मेरी एक टाइम टू टाइम जैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस करके इसकी स्ट्रेंथ बनाई है। तो स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक करना है आपको। आप अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ये गले पे आएगा। आपको ब्रीथ एक्सेल करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। जैसे आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाए एक्सेल होना, देन इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल 3 टाइम, देन वापस से कपालभाति स्टार्ट कर दीजिएगा। अगेन 1 मोर, इनहेल एक्सेल, स्टार्ट अगेन कपालभाति ब्रीदिंग। नाउ अब कपालभाति ब्रीदिंग के थ्रू हम फोर्थ आपका प्राणा एक्टिवेट कर रहे हैं, समाना प्राणा, फोर्थ प्राणा। हमने 3 प्राणास एक्टिवेट कर चुके थे, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन फोर्थ इस कपालभाति थ्रू हम समाना प्राणा इस एक्टिवेट कर रहे हैं। Just relax and observe your body. कहाँ स्ट्रेन आ रहा है, लोअर बैक में, लोअर एब्डोमेन में। आप जस्ट ऑब्जर्व एंड एक्सेल जब आप कर रहे होते हैं, जस्ट थिंक कि आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी डिसीज बाहर आ रही हैं, और जस्ट क्रिएट योर हीलिंग ऑरा अराउंड योरसेल्फ। जस्ट फील रिलैक्स। Samana prana through Kapalbhati breathing. Inhale, exhale. Start Kapalbhati breathing. Continue. Just relax. Now we will do अग्निसार क्रिया, अग्निसार प्राणायाम। ये क्रिया होती है, अग्निसार को प्राणायाम भी कहते हैं, बट ये एक क्रिया होती है जिसमें हमें क्या करना है, डीपली इनहेल एक्सेल करके ब्रीथ को अंदर ही होल्ड कर देना है, एक्सेल करके होल्ड करके, देन हमें स्टमक इन और आउट करना है कंटिन्यू। तो आप इसको 10 सेकेंड कर सकते हैं, फिर 20, 15 इस तरह से। लेकिन जिसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी है वो इस प्राणायाम को मत कीजिएगा, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा चेस्ट में कहते हैं हीट रहती है, जैसे कहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, वो इस प्राणायाम को नहीं कर सकते। और जिसकी मतलब पित्त बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो अग्निसार उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा, जिनको जैसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और जैसे कफ, जिसको बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, साइनस है, वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो करना कैसे है इसको, डीप इनहेल, एक्सेल, होल्ड, आप स्टमक को देखिए एंड लॉक करना है आपको। आप लॉक भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। स्टार्टिंग जो योगा कर रहे हैं वो नहीं कीजिएगा, और जो अगर बहुत टाइम से कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसको। रखिएगा, आपको इसको छोड़ने के बाद इनहेल आना चाहिए, एक्सेल नहीं आना चाहिए।
ये आपका एक साइन होगा कि आपने प्रॉपर किया उसको। अगर आपको इनहेल नहीं आता है, आपको एक्सहेल आता है, तो आपने ये गलत किया है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप इनहेल, एक्सहेल, देन होल्ड एंड कपाल, आप इसको इन और आउट कीजिएगा अग्निसार क्रिया में। तो आप स्टार्टिंग में इसको 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते जाइएगा, बट लास्ट आप ये 10 कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनको कफ है, जो बहुत ज्यादा साइनस है, या फिर और जिनको बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है उनको, और जिनकी तासीर गर्म है वो इस चीज को नहीं कीजिएगा। Now, So, Gauri, before sorry for interruption. We have 8 minutes left. So, can we do accordingly? 1 minute left. 8 minutes left. 8 minutes left. Yeah. 8 minutes. 8 minutes. Yeah, sure. Thank you. Okay. Now, third is 3 बंधन। 3 बंधन इस बायां प्राणायाम। तो उसको आपको कैसे करना है? डीप इनहेल, एक्सहेल, लोअर पोर्शन जो नेवल से नीचे वाला पोर्शन है उसको आपको अपवर्ड में करना है, सेंटर पोर्शन को बैकवर्ड में करना है, एंड चिन को लॉक करना है। ये होते हैं 3 बंधन। तो जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो इस चीज को, इस प्राणायाम को आप किसी योगा टीचर की निगरानी में ही कीजिएगा। आप ये नहीं आप इसको अकेले ट्राई करें और आप उस चीज को गलत करें, आपकी बैक में पेन शुरू हो जाए और आपके लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाए, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट साइन ये है कि आपको करना कैसे है, इसके आपको लोअर पोर्शन अपवर्ड, सेंटर पोर्शन बैकवर्ड एंड चिन लॉक। तो 3 बंधनास कैसे करने हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बार। एक्सहेल एंड लोअर पोर्शन अपवर्ड। One more time. तो इस प्राणायाम में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इनहेल आना चाहिए, एक्सहेल नहीं आना चाहिए। आपका इनहेल आया तो दैट मींस आपने ये प्राणायाम बिल्कुल ठीक किया है। ये प्राणायाम आपको किसी की निगरानी में, योगा टीचर की निगरानी में ही करना, विदाउट उनके मत करना, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं। और आप इस प्राणायाम को भी, जिनको बहुत ज्यादा हीट रहती है बॉडी में, वो इस प्राणायाम को बहुत कम करते हैं। 1 बार या 2 बार आप कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम अब हम फिर प्राणायाम एक्टिवेट करेंगे, जिसको कहेंगे व्याना प्राणा। तो व्याना प्राणा एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोरहेड पे एंड थंब से आपको राइट नोस्ट्रिल्स बंद करनी है एंड आपको लेफ्ट से इनहेल करना है। तो किस तरह से करना है, आप इसको ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं, बट वायु मुद्रा इट्स गुड फॉर ऑल प्राणास। वायु मुद्रा होती है आपके इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करके इस तरह से। वायु ही हमारी बॉडी में वर्क कर रही होती है, जैसे नीचे ऊपर, तो सारे प्राणायाम में वायु ही हमारी वर्क कर रही होती है। तो इस तरह से आप वायु प्राणायाम में बैठ के, मुद्रा में बैठ के आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इनहेल टू लेफ्ट, एक्सहेल टू राइट। बॉडी मूव नहीं करेगी, जस्ट इनहेल, बैक सीधी, चेस्ट ओपन, इसी तरह से आप इस प्राणायाम को 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स कीजिएगा, क्योंकि शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से उसको स्टॉप कर करके आप बीच में रेस्ट ले लेके आप कर सकते हैं।
Absolutely. And if you are doing these kind of breathing techniques, so I would request to all of you, make sure your body temperature should be normal before doing it. And this is a breathing technique, so that you should take care about each and every, your breathe whenever you are doing it. बॉडी में Especially हीट, I would दैट मींस recommend it in morning. Yeah. यस, बॉडी में हीट दैट मींस आपको फीवर भी है या कुछ भी हेडेक है या बहुत ज्यादा आप लो फील कर रहे हैं, तो आप इन प्राणायाम को मत कीजिएगा। आप अनुलोम विलोम फिर भी आप कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे, बट बहुत स्लो ब्रीथिंग के साथ आप। And don't try it during swimming, and don't try it during driving as well. यस, कंफर्ट प्लेस आप देख लीजिएगा, आपकी आसपास मतलब फ्रेश एयर होनी चाहिए, जिससे आप फ्रेश फील करें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपको चाहिए होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जब ऑक्सीजन आप नहीं लेंगे तो आप बहुत लो फील करेंगे, हेडेक होगा स्टार्टिंग में आपको, तो फिर वो चीज़ें सही नहीं है, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। तो जितना हो ओपन एरिया में ही कीजिएगा। Sorry, we have 2.30 seconds only. 2 minutes 30 seconds. Sorry. अब हम करेंगे लास्ट सेकंड प्राणायाम इस आपका है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपको क्या करना है, जिनको लॉक करना है आप इस नेक से, आप स्टार्टिंग में बिना लॉक किए भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्रीथ ले नहीं पाते थ्रू थ्रॉट, तो थ्रॉट से हमें ब्रीथ लेना है। कैसे लेना है? गौरी, आपका वीडियो स्टक है। आप ठीक है? यस। हाँ। तो इनहेल आपको थ्रू थ्रॉट करना है। कैसे? चिन लॉक करके राइट क्लोज, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। ये है उज्जयी प्राणायाम। जिनको थायराइड है, जिनको थ्रॉट पेन रहता है, टॉन्सिल्स हैं, वो इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको आप 5 मिनट्स या 5 टाइम 10 टाइम्स आप इजीली कर सकते हैं। जिनको थायराइड है वो एटलीस्ट 20 टाइम्स कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 5 6 7 इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना है। 1 मोर, inhale, exhale, chin lock, ये था उज्जयी प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी, लास्ट प्राणायाम इस भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम आपको, जिनको माइग्रेन है, जिनको बहुत ज्यादा हेडेक होना शुरू हो जाता है, गैस बनती है, उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। और आप इस प्राणायाम को मॉर्निंग में ही, मतलब सारे प्राणायाम वैसे मॉर्निंग में ही बेटर है, बट अगर आप इवनिंग में करते हैं तो आपको वही है कि 4 to 5 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके खाने में। तो 3 फिंगर्स, लास्ट के 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स को आपको रखना है फोरहेड पे, लास्ट 3 फिंगर्स आपको ऑन आईज पे, एंड आपकी जो थंब है उससे आपको ईयर को क्लोज करना है। अंदर नहीं डालना है ईयर के, ईयर से क्लोज करना है। तो कैसे करना है? डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आपको हमिंग साउंड करना है।